ٹھیک ہے، تو ہماری کلاس جو ہے وہ چلی گئی ہے. پہلے ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ ہم ڈسپلن کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے ڈسپلن ایکچولی. ٹھیک ہے، دوسری کلاس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب آپ ڈسپلن اختیار کرنے جاتے ہیں تو کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو ڈسپلن سے روکتی ہے. پھر اگلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کیسے روکتی ہے وہ، کیا ٹول ہیں اس کے پاس، وہ کیسے آپ کو جو ہے وہ دلائل دیتی ہے. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہاؤ ٹو مینیج ہائیڈ. یہ جو آپ کا ہائیڈ ہے جو آپ کو ڈسپلن اختیار کرنے نہیں دیتا، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے، اس سے آپ مقابلہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کچھ نئے لفظ پڑھیں گے اردو کے، تو وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. پہلے آپ کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں. ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے تحت الشعور، اور ایک ہوتا ہے لاشعور. ٹھیک ہے، یہ 3 لفظ ہیں جو آپ کو سمجھنے پڑیں گے. یعنی ہم جو انسان ہیں، ہماری جو پرسنالٹی ہے، صحیح ہے. دیکھو، ایک تو ہمارا باڈی ہے اور ایک ہمارے اندر روح ہے، یا سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی صلاحیت. اچھا، کبھی آپ غور کریں گے تو جو باڈی ہے نا، وہ اس روح کا غلام ہے. اندر سے وہ جو بولتا ہے باڈی اس کی بات مانتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں 2 طریقے ہو جاتے ہیں ہر آدمی کے پاس. ایک تو یہ کہ وہ اپنی روح کی بات کو سمجھے اور باڈی اس کی بات مانے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور بعض شخصیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ روح کمزور پڑ جاتی ہے اور باڈی طاقتور ہو جاتی ہے. الٹا پروسیس ہو جاتا ہے. روح جو ہے وہ باڈی کی بات مانتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو ایسے مثال لیں کہ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو گھوڑا جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ سوار کے. سوار جیسے چاہے اسے چلائے. اس کو دوڑانے کا بولے تو وہ دوڑے، اس کو رک جانے کا بولے تو وہ رک جائے، ادھر مڑنے کا بولے تو ادھر مڑ جائے، چھلانگ لگانے کا بولے تو چھلانگ لگائے. بول کون رہا ہے؟ سوار. عمل کون کر رہا ہے؟ گھوڑا. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کے اندر ایک ہے آپ کا باڈی، یہ گھوڑا ہے، اور آپ کی جو اندر سوچ ہے، جو خیالات ہیں، یہ جو آپ کی روح ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ سوار ہے. تو روح کنٹرول کرتی ہے باڈی کو، تو زندگی کا سفر اچھا گزرتا ہے. روح بولتی ہے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے تو باڈی اڑ جاتا ہے. روح بولتی ہے یہ کام کرنا مشقت کا تو باڈی کرتا ہے. لیکن بعض اوقات الٹا معاملہ ہو جائے کہ باڈی حاوی ہو جائے کس پر؟ روح پر. صحیح ہے، اندر سے روح بولے کہ بھائی نماز پڑھنا ہے اٹھو، باڈی کیا بولے؟ ابھی مجھے اور آرام کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے سوار کی بات گھوڑا نہیں مان رہا، نہیں سن رہا. صحیح ہے، گھوڑا تھوڑے دنوں بعد کیا ہوگا؟ سوار نیچے آ جائے گا اور گھوڑا اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور گھوڑا آدمی کے اوپر بیٹھ کے اس کو بولے گا اب جیسے میں بولوں گا ویسے تمہیں کرنا ہے. صحیح ہے.
मतलब घोड़ा बोलेगा कि बहुत दिल चाह रहा है बर्गर खाने का, ये घोड़ा है ना तबान, बहुत दिल चाह रहा है बर्गर खाने का, तो बर्गर आना के अंदर से वो बोलेगी रूह जो भाई बर्गर के अंदर ऐसे मटेरियल हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन आप उसकी बात नहीं मानोगे। तो ऐसे भी लाइफ गुजारते हैं लोग कि उनका जो रूह है वो बॉडी के कंट्रोल में आ जाती है, जबकि होना क्या चाहिए कि हमारा जो बॉडी है वो हमारे रूह के कंट्रोल में, हमारे अंदर जो आवाज़ आ रही है उसके कंट्रोल में हो। अच्छा, अब ये जो आवाज़ आती है आपके पास, इसको मज़ीद जब आप स्टडी करते हैं तो आपका जो जहन है वो आप नहीं हैं, ये जहन में रखिएगा आप। ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है कि हम में से हर आदमी ये सोचता है कि जो मेरे अंदर सोच है वो मैं हूँ। नहीं, सोच आप नहीं है, या आपका जो दिमाग है वो आप नहीं है। सही है? जैसे ये तो हमारा बॉडी है, हम समझ रहे हैं, नज़र आ रहा है, लेकिन हम जब चुपके से बैठ के सोच रहे हैं कुछ, हाँ भाई अभी अगला पीरियड आने वाला है, मेरे दिमाग में ये जो सोच आ रही है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो सोच है ये असल में मैं हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। ये असल में मैं नहीं हूँ, ये असल में मेरा दिमाग है। ठीक है, ये असल में मेरा, तो मैं कहाँ हूँ? सही है भाई? देखो ना, जैसे मेरे पास मेरा दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने को, अब मेरे दिमाग में ये सोच आ रही है कि मैं आइसक्रीम खाता हूँ। ये सोच मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी अंदर की आवाज़ है, या ये मैं चाहता हूँ। असल में ये मैं नहीं चाहता, ये मेरा कौन बोल रहा है? दिमाग बोल रहा है। अब हमें दिमाग बोल रहा है तो मैं कहाँ हूँ? अच्छा देखो, दिमाग का एक हिस्सा क्या बोलता है? एक बोलता है आइसक्रीम खाना का दिल चाह रहा है। उसी लम्हे दूसरा हिस्सा बोलता है कि राय साहब आपको शुगर है, आप अगर आइसक्रीम खाएंगे तो शुगर आपकी बढ़ जाएगी। जो खाने के लिए बोल रहा है वो भी मैं नहीं हूँ, और जो ये बात कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए वो भी मैं नहीं हूँ। दोनों कौन है? मेरा दिमाग है। तो मैं कहाँ हूँ? मैं, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है कि मैं कहाँ हूँ? मैं। सही है? तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बॉडी जो मादी है, मादा है, मटेरियल है, यह मादा का मतलब नर मादा नहीं बल्कि मैटर है, और ये आपका बॉडी है, और जो आपका गैर मादी चीज़ है मादा वो है जो इस बॉडी, इस दुनिया में नज़र आ रहा है, और आपकी वो शख्सियत जो गैर मादा है वो है जो खुदा की तरफ से आई है। ठीक है? ये बॉडी नज़र आ रहा है, मेरे बाल हैं, होंठ हैं, आँखें, नाक है, पैर हैं। अगर पैर टूट जाए तो बॉडी को नुकसान हुआ। इंसान जो मेरे अंदर है, जो मैं हूँ असल में, उसको नुकसान नहीं हुआ। ठीक है? तो ये जो मादी बॉडी है और जो मेरे अंदर वो वाली इंसान है जो कहाँ से आया है? खुदा के पास से आया है। उन दोनों के बीच में जो संगम है, संगम,
संगम का मतलब जो इस मादी बॉडी और इस गैर मादी इंसान को आपस में मिलाता है, वो पॉइंट जहाँ पर आपका मादा ख़त्म हो रहा है और क्या शुरू हो रही है, रूह शुरू हो रही है। मैं जब लफ्ज़ रूह कह रहा हूँ तो मैं इंसान कह रहा हूँ, इंसान। तो एक है आदमी जो नज़र आ रहा है और एक है इंसान जो नज़र नहीं आ रहा। एक है आदमी बॉडी जो मादा है, मटेरियल है, और एक है आपके अंदर इंसान शख्सियत जो नॉन मटेरियल है। अच्छा, अब आपका जो मादा है वो और आपका जो गैर मादा है इंसान, वो दोनों मिलते कहाँ हैं? वो मिलते हैं दिमाग में। दिमाग आपके मटेरियल बॉडी और नॉन मटेरियल बॉडी का संगम है। संगम का मतलब क्या है? वहाँ पर मादी बॉडी एंड हो रहा है और वहाँ से इंसानी पहलू शुरू हो रहा है। ये नहीं कि वो इंसान है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के लिए यही होता है कि वो ये समझते हैं कि ये जो मेरी सोच है, ये मेरे जहन में जो ख़यालात आ रहे हैं, ये दरअसल मैं हूँ। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, बल्कि ये तो मुझ तक पहुँचने के लिए जहाँ मेरा मादी बॉडी एंड हो रहा है और जहाँ से मेरा इंसान शुरू होगा, इन दोनों का दरअसल जो संगम है, दोराहा है, उसको आप क्या कहते हैं? दिमाग। इसको आपको अच्छे तरीक़े से समझ लेना चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो आप नहीं हो। आपके अंदर जो सोचें आ रही हैं वो आप नहीं हो। वो सोचें दरअसल क्या हैं? दिमाग। ये बात क्लियर हो रही? ठीक है। ये बहुत, मैं इसको पेचीदा नहीं कर रहा, आप लोग 10वीं 9वीं के स्टूडेंट हो, आपके लिहाज से मुझे जितनी बात समझानी है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप मादी ऑब्जेक्ट से दिमाग तक आ गए और दिमाग से आप कहाँ जाएंगे? अब अपनी उस रूह तक जाएंगे। ठीक है। जैसे ही आप दिमाग तक पहुँचते हो, आपका जो पहला स्टेज होता है वो होता है शऊर। क्या होता है? हाँ, ये क्या है?